Hi guys, this video is going to be about how to enhance vocabulary or how to remember the words. Actually, what is vocabulary? Vocabulary is just a collection of words which we use to describe any situation or any person or anything about. So, whenever we are talking about something or someone, at that time, depending upon the situation and the characteristic features of that person, we need to have a set of words with us. That is your vocabulary, the dictionary you make in your mind. Now there are two situations, because this question comes a number of times on floor, that how to remember the words. Everybody uses this term, vocabulary, how to enhance vocabulary. So my question first of all is that what is vocabulary? And I'm going to make this video as a mixture of Hindi as well as English. क्या होती है vocabulary? Vocabulary कुछ नहीं है. When we are talking to someone, तो वो बात करने के लिए we should have some words. Is, am, are, was, were. ग्रामर के अलावा we need a set of words, and those set of words जो हम यूज करते हैं, that is our vocabulary. One thing, another. अब जब हम किसी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, एट ए टाइम सब कुछ तो नहीं मिक्स करते ना, इन वन गो तो हम एक ही कोई बात कर रहे हैं. तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस सिचुएशन के लिए या उस पर्सन के लिए यू नीड और वी नीड जस्ट अ फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स. अब शुरू से शुरू करते हैं. मान लो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरू कर रहे हो आप. अगर तो आपका लेवल वो है कि आपने इंग्लिश कोई नहीं ज़्यादा एजुकेशन ली है या एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है, तो आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो. तो हमेशा क्या होता है, जब हमने कोई लैंग्वेज भी व्हेन वी स्टार्टेड लर्निंग दैट लैंग्वेज, तो क्या करते थे, वी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स. अगर अब आपने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करनी है, तो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनके इंग्लिश के नेम हमें पता होने चाहिए. यही उसका अल्फ़ाबेट्स है. लाइक दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल. तो इट मीन यू शुड बी अवेयर ऑफ चेयर, टेबल, काउ, क्रो, ट्रीज, प्लांट्स, वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये है वेरी बेसिक. लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा फनी सा, बट यही होता है, यही चीज़ होती है. अब आ जाओ उससे आप ऊपर. ये चीज़ें तो हमें पता है, बट थिंग इज नाउ यू व्हेन मेक द सेंटेंसेस, ओके, यू आर स्टिल स्टक अप समवेयर विद जस्ट फ्यू वर्ड्स. लाइक हर सिचुएशन में अगर एट रैंडम हमें या इन रियल सिचुएशन बोलना पड़े जहाँ हमें वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सिचुएशन बिफोर हैंड, तो वहाँ पे हम जो वोकेबलरी है, इन दैट केस हम भूल जाते हैं हम कैसे बोलें, क्या वर्ड्स यूज़ करें. इसके लिए जो मैंने व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड एंड आई वर्कड ऑन इन माय केस, बिकॉज आई डू फील दो I had studied English as a subject, and of course I didn't start from this chair, table, etc. kind of thing. But yes, whenever I made up my mind that now I would start speaking in this language, though I could frame the very basic phrases, but at the same time, when I was to talk in the real situation, real unpredictable situation, like I was not prepared for that beforehand, so I would stuck. Every time I would stuck. Like if suppose I would start talking to someone, or as I have shared, every time I share it with you, that I used to do self talk, like the way I'm doing at the moment. So I'm talking whatever is coming in my mind. I haven't planned that. It's not scripted, okay, I'm going just with the flow. And a number of times the situation comes where right kind of word doesn't click in my mind. Either I don't know, either I don't remember. So I do one exercise, that I have started with one exercise, that is
बिकॉज एक ही बार में अब मेरे को स्पोर्ट्स की भी सारी वोकैबुलरी पता हो, मुझे फिल्म इंडस्ट्री की भी पता हो और मुझे पॉलिटिक्स की पता हो, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो हमारे आसपास जो सिचुएशंस होती हैं, बेटर यू पिक अप वन सिचुएशन एट अ टाइम। अब उसका आइडिया कैसे आएगा, हाउ टू पिक अप दैट वन सिचुएशन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। Go through the newspaper, the main front page. If you are like, I'm not into reading, I can't read, but yes, I take it as my prime duty sort of thing, that I have to go through the main page of the paper, so that being educated, at least I should be aware of what is happening around, at least what is happening in my city, at least. So you might have noticed if you are into reading कि वहाँ like हर तरह की न्यूज़ होती है, and whenever you go through the news, अब न्यूज़ कौन सी, जो आपके टेस्ट की है। अब मेरे को स्पोर्ट्स अच्छी नहीं लगती, तो जस्ट आई विल गो थ्रू द हेडलाइन सो दैट आई गेट टू नो क्रिकेट हुआ, मैच हुआ तो क्या हुआ, हु इज़ द विनर, पाकिस्तान के साथ मैच है, व्हाट वाज द आउटकम, व्हाट हैपेंड, काइंड ऑफ थिंग, जस्ट द हेडलाइंस। बट डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होती है विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, या सोशल इश्यूज़ के साथ रिलेटेड न्यूज़ होती है, वो हम सबकी इंटरेस्ट की होती हैं कहीं ना कहीं। यू जस्ट पिक अप वन दैट सेट ऑफ न्यूज़ कि मेरे को इस तरह की न्यूज़ के ऊपर वर्क करना है। व्हेन एवरी डे यू आर गोइंग थ्रू दोज न्यूज़, दोज काइंड्स ऑफ न्यूज़, यू वुड फाइंड कि उसमें एक पर्टिकुलर या कह लो फिक्स सेट ऑफ वोकैबुलरी यूज होती है। दो इन एवरी सेकेंड न्यूज, एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे यू वुड कम अप विद न्यू वर्ड। और न्यू वर्ड इसलिए क्योंकि पिछली न्यूज के साथ उसमें वो कंटेंट नहीं होगी, इसमें वो है, तो यू गॉट अनदर वर्ड। बट आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, आई एम यूजिंग वर्ड कपल ऑफ वीक्स, माइट बी इन 1 week ओनली, आपके पास एक प्लेथरा ऑफ वर्ड्स हो जाएगा रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक एरिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। अब मेरे को ना वोकैबुलरी चाहिए, मैं एक एरिया चूज कर लेती हूँ, सिटी में क्राइम बहुत होते हैं, तो जब कोई क्राइम होता है तो उस वक्त न्यूज़ पढ़ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो कौन सी वोकैबुलरी उसमें यूज होती है, जो कौन से वर्ड्स आते हैं। So whenever there is a crime, तो every crime is related to police. पुलिस है तो पुलिस के साथ कॉप्स, कॉप्स है तो जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या है, कोई स्नैचिंग हुई होगी, कोई रॉबरी हुई होगी, कोई बर्गलरी होगी, कोई किलिंग होगी, कोई फ्रॉड होगा, कोई साइबर क्राइम होगा। तो जहाँ पे क्राइम होता है वो क्या होता है, दैट इज द स्पॉट जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है। अब उसमें क्या है, कोई जिसके साथ ज्यादती हुई है वो विक्टिम है, जिसने की है वो कल्प्रिट है, पर्सन है, उसके ऊपर शक है, पर वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो उसको जो मेन जिसके ऊपर काफी शक होता है कि यही वो पर्सन होगा, वो प्रिंसिपल ऑफेंडर होता है। ओके, अब जब पुलिस ने पकड़ना होता है किसी को, जहाँ कोई क्राइम सीन हो गया, जहाँ कोई किलिंग ही हो गई है, कोई मर्डर हो गया है, तो आपने नोट किया होगा वहाँ पे वो लगा देते ना रस्सियाँ सी, कुछ वो बैरिकेड से कुछ लगा के उस एरिया को बंद कर देते हैं, दैट इज कॉर्डन, उसको कॉर्डन बोलते हैं। अगर किसी को पकड़ना होता है, मान लो पुलिस को सुराख मिला है, अब सुराख मिलना होता है टिप ऑफ, पुलिस को टिप ऑफ मिली है फलानी जगह पे कोई है, जब उसने पकड़ना होता है तो वो एरिया को घेरा डालते हैं। अब ये घेरा उस तरह का घेरा नहीं होता कि वो बांध के कोई एरिया करे, जगह जगह पे जैसे विदाउट यूनिफॉर्म वो पर्सन जो खड़े हो सकते हैं, वो भी कॉर्डन होता है, कॉर्डन लगा के वो करके जो है क्रिमिनल को पकड़ते हैं। अब कोई मेला, त्योहार, फेस्टिवल होता है, कोई इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डे होता है, किसी बड़े लीडर ने आना होता है, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी जाती है और नंबर बढ़ा दिया जाता है। ये जो सिक्योरिटी का नंबर बढ़ाना होता है ना, जब कितने ही पर्सनल डिप्यूट कर दिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं बीफ्ड अप, सिक्योरिटी बीफ्ड अप, नंबर बहुत बढ़ा दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि जब हम रोज उस तरह की न्यूज़ पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड आएंगे, तो नाउ व्हाट इज द डिफिकल्टी, वेयर इज द डिफिकल्टी? नाउ यू कैन मेक एनी सेंटेंस रिलेटेड टू एनी क्राइम, एनी इंसिडेंट related to this area. Next time you can choose some other area. Maybe it's a Bollywood film industry, or like entertainment industry, or fashion industry, maybe sports, maybe you have interest in politics, so it could be, your area could be politics. So this is the best way. Take one step at a time, choose one area at a time and start working on that. And after a few days you will have a good collection of vocabulary words, isn't it? Go this way.